عبید بھائی آپ کا بہت بہت استقبال ہے. ہاں جی یار جی عبید بھائی یہ ایم ڈی ہر حیات چیز بھائی ہمارے قرآن میں ہے. عبید بھائی ہمارے ایم ڈی حیات بھارتیہ مسلم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کاما سوترا کی کتاب بھی قرآنی ہے, پلے بوائے میگزین بھی قرآنی ہے. کیا کہیں گے ہمارے ایم ڈی حیات بھائی کو؟ ان کو معلوم نہیں ہوگا تو ان کو تم نے بات میں وہ کر دیے تو انہوں نے اسراف کر دیا بات کو. اصل میں ارے میں نے قرآن انہوں نے آپ تصرف بات کر کرو, دیا ایم ڈی تو حیات انہوں نے بھائی سے بول بات دیا. کرو. ایم ڈی حیات بھائی میں ان سے بول بات کرو ساحل یار, بھائی ہم ساحل چپ ہو بھائی جاتے. یہ جو میرا موقف ہے آ گیا, ٹھیک ہے, سننے والا سمجھنے والا سمجھ جائے گا قرآن نہیں کہ ہے قرآن. عربی نہیں میں نہیں, ایسا ہر کیسا چیز ایسا کو کیسا مان لیں گے آپ کا موقف؟ نہیں مطلب سمجھ جائے گا. اگر میں غلط ہوں تو مان جائیں گے کہ یہ غلط بول رہا ہے, اگر صحیح ہے تو صحیح تو ہے. بول رہے نا عبید بھائی, بول رہے تم غلط ہو. جی ٹھیک ہے, کتاب اس کا تمام نظر میں چیزیں غلط ہوں. کتاب ہیں مگر قرآن تو قرآن ہے. جیسے کتابیں ہیں, کتابوں کے الگ الگ اسم ہے, نام ہے. اسی طرح سے قرآن کا قرآن نام ہے, اسی طرح سے عام کتابوں کا الگ الگ نام ہے. تو اسی طرح سے ہے. ارے یار قرآن کا معنی پڑھائی ہمارے ہندی میں پڑھائی کہیں گے, ہاں کتاب عربی میں اس کو قرآن لفظ استعمال کرا جائے نہیں گا, نہیں کرا کرنا قرآن. یار کیا بات کر رہے ہاں ہو. ہاں وہ قرآن قرات کرنا پڑھنے کا ہی نام ہے, پڑھنے والی. اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے, کتاب کے مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی کتابت. نہیں جیسے لکھی ہوئی کتابت کرتے نہیں, ہیں نا, کتاب کتب کرنا, لکھنا, کتاب لکھی ہوئی بات, کتاب کے لکھنے والی, کتاب کے معنی لکھی جانے ہوتا ہے والی, کسی سے. لکھی جانے والا بک کتاب کا مطلب ہے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرات کرنا. اور قرن کا مطلب ہوتا ہے پرانی باتیں جو پرانوں سے چلی آ رہی ہے, جیسے انسان کے وجود سے اس وقت کی باتوں کے جو اہم اہم واقعات, عذاب اور انعام جو ہوا ہے اللہ کے بندوں پر اور اللہ کے اچھے اور برے بندوں پر, تو اس کے بارے میں اس میں بتایا. کا او مطلب یہ بھی بھیا ہوتا ہے. قرآن باتیں قرن کتنی قرن کر رہے ہیں, کے نتیجہ لفظ کہیں نکالو. کئی جگہ ہے. بس چھوٹی باتیں کرو, جو ہاں سمجھنا ہے یہ سب سمجھ لیں ہاں گے. ہاں, تم جو دیکھو بول رہے ہو کتاب کے معنی, قرآن کا کتاب کے قرات کرنا معنی یہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے, تو کہ تمام چیز قرآن نہیں کتاب ہوتا ہے. قرآن کا اصل معنی ہوتا ہے, قرات کا معنی ہوتا ہے پڑھنا. قرآن کا اصل معنی ہوتا ہے جو قرن مطلب ہوتا ہے. قرن کا مطلب ہوتا ہے صدیوں پرانے قصے, واقعات, ان کو لے کر آنا, ان کو جمع کرنا قرآن ہے. قرآن اصل میں اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے. اللہ کی جو خاص کتاب ہے اس کو کہا جاتا ہے. اللہ اور پچھلی کتابیں اس کو بھی قرآن کہا گیا ہے, قرآن کہا گیا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے نا, قرآن نے اس کو بھی قرآن کہا ہے, ایک تو آیت میں کہا ہوا ہے. بھائی کسی بھی تو بات کو قرآن اگر مطلب اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے, قرآن کا معنی ہوتا سمجھے. ہے تو پڑھائی. اصل یار میں ایک ہی بات کو گھما پھرا ہاں کے کتنی بار ہاں, کہو گے. قرآن قرات کے معنی کسی پڑھائی ہوتا ہے. کسی بھی ہاں ہاں, چیز میں کو وہی اگر تو. آپ سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو اور اس کو پڑھ رہے ہو, یعنی کہ آپ قرات کر رہے ہو, یعنی کہ وہ قرآن ہو گیا. اب اس کو جو ہے کہ ہاں چیک ہاں کرنا ہاں. ہوگا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو, یعنی کہ قرآن جو ہے آپ جو کر رہے ہو, کر رہے ہو, یہ اللہ کی طرف سے ہے یا انسانوں کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے. وہ لفظ خود بتائے گا کہ یہ جو لفظ جو آپ کے سامنے میں کوئی ہاں پڑھ ہاں, رہا یہ بھی ہے مانا یعنی ہوتا ہے اس کرا کا, یہ کر بھی رہا ہے, یا قرآن آپ قرآن کے خود معنی پڑھ رہے کرنا ہو ہوتا ہے. یا سمجھ رہے ہو, وہ لفظ قرات خود قرآن خود گواہی دے گا وہی کہ مانا میں جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ہوں. تو قرآن میں جو اگر آج کے انسان سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی آپ جو چپ ہو جائیے. بسم ابھی اللہ آپ الرحمن چپ ہو الرحیم سے جائے, الناس پڑھنا ہی تک ہوتا ہے. جتنے. ارے رک جا بھائی, بات کر لینے دے, پھر میں نکل جاؤں گا, پھر آپ بولتے رہنا, پھر میں 4 مہینے نہیں آؤں گا اسٹریم میں. پہلے سن تو لو. لیکچر سننا یہاں پہ دیکھو تقریر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الناس تک جتنے بھی لفظ ہے جو ابھی کے بک میں, جس کو آپ لوگ بک کہہ رہے ہو, اس زمانہ گزرنے کے بعد یہ سسٹم ختم ہو جائے گا, پھر کوئی دوسری چیز آ جائے گی, بک کے معنی وہ ہو جائے گا. تو اس میں جو 666 یا 6600 جتنے بھی لفظ مان لو, اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. تو لفظ خود بتائے گا, جب تم پڑھو گے تو اس میں بتائے گا کہ یہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے یا انسانوں کا مداخلت ہے. تو میں نے پڑھا
तो कहीं कहीं इंसानों ने मुदाखलत करने की कोशिश की। जो ये भाई साहब लोग बता रहे हैं कि ये कहीं पे अलिफ है, कहीं कोई पे ओ मुदाखलत है। नहीं हुआ, उन्होंने जो बता रहे हाँ, हैं उनके पास दलील नहीं किया है। है फिर उनका उनका झूठ मुतालबा है कि कोई झूठ जितना किताब बोलोगे हो यार पकड़े जो जाओगे। लेके आओ तो हम 2 लाख रुपए इनाम देंगे। जो यार मोहम्मद मुझे यार एक सल्लल्लाहु अलैहि सवाल झूठ वसल्लम पूछने बोलोगे की इजाजत है। पकड़े जाओगे। झूठ बोलोगे तो मुझे एक पकड़े हाँ जी सवाल भाई, जाओगे। सवाल मुझे एक करो। कुरान सवाल में भी पूछने की मुदाखलत इजाजत है किया यार। है। मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा नहीं है, नहीं, ठीक। अली अली भाई बोलो, अली भाई बोलो। मैं ये कह रहा हूँ अवैध भाई और आप दोनों जो बात कर रहे हो, आप दोनों में से किस किस के घर पे कुरान है ना, मेरे घर पे है। और आपके बोलो। घर पे भाई? जी मेरे पास पढ़ाई है, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी भी जो आप लोग से बात कर रहा हूँ ये पढ़ाई है। अरबी में कुरान कहेंगे नहीं इसको। नहीं, जो हमसे आप करा बात कर करें रहे हैं, आपके घर पे समझ रहे मौजूद हैं। तो नहीं हाँ है ना? आपके घर पे जी कुरान नहीं मौजूद या है? जी, कुरान का मानी आपने समझ लिया कि एक आप कुछ जिसे कुरान सुराग समझते हो वो होंगे। आपके घर पे है या नहीं है? जी मैं जो कर रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वो है, लेकिन आप लोग जो जिसको समझ रहे हैं वो भी है मेरे पास। मेरा सवाल ये नहीं है ना। यहाँ तक मैं कि जो मेरे कर मोबाइल मेरा में भी है। सुनिए, देख रहे हो मेरे इसकी मोबाइल जलेबी? में एक जलेबी देख कॉपी रहे है। हो इसकी? मुतालबा है कि खैर कुरान भाई जैसी निकल ये जाएंगे। किताब नहीं बता लेके रहा कि आओ इसके जो घर पे किताब कुरान की है या शक्ल नहीं है। में हो। जी भाई है, अभी को आपको वीडियो करके दिखा दूं। हाँ, आप किस तो तरह वो से कुरान जवाब मोहम्मद दोगे? पे आया है, ये शक्ल में आपके पास कौन क्या सी कुरान सबूत है? मौजूद है, आ, ये जवाब चाहिए। और जी हाँ यार है जो जिसको आप समझ रहे हैं वो भी है, और जिसको मैं समझ रहा हूँ, जिसको अल्लाह समझाना चाह रहा है वो भी कौन है। से उस्मानी कुरान है क्या? भाई माफ कर दो दोनों, माफ कर दो, यार 2 मिनट के लिए। जूनागढ़ी का। हाँ साहिल जी बुखारी का नमस्ते। कुरान क्या है? वो क्या है, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान है जो जमा हुआ था उस दौर में, वो यार कुरान है। उस जमाने का कुरान तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा यार। कितने ओए किताबें होए वही छपी होए हैं होए। है आप उनका। लोग के हिसाब से। ये सब इंसानों का छपा हुआ है, लेकिन उसमें जो लिखा गया है उसके उसका हिफाजत का जिम्मा अल्लाह लिया गया है। उस अल्लाह ने लफ्ज को हिफाजत पहले पढ़ो। दिला दिया, उसमें हर्फ का भी फर्क नहीं हुआ है। उसमें हर्फ का भी फर्क नहीं हुआ। पूरे पूरे अरे यार आलम में हर क्या जो क्या कुरान है उसमें फर्क हर नहीं है। चीज, मगर बहुत इनका चीज में फर्क मुतालबा आप किया है पूरा यार। करो ना। आप दुनिया का बहस करके क्यों स्ट्रीम का टाइम वेस्ट कर रहे हो? उनका मुतालबा है कुरान को सही साबित करके बताओ कि ये रसूलुल्लाह का कुरान है, उस दौर की किताब लेके आओ तो 2 लाख रुपया मिलेगा। तो इसका क्या जवाब मैं देना है इनको? मैं इनको बता रहा हूँ तो ये तो आप बहस करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, आप आप लोग ऊपर अभी किताब जितने भी करो। मुसलमान हो ना, सुनो ना, जितने भी मुसलमान हो नहीं ला सकते। मैं भी एक मुसलमान हूँ, अरे भारतीय मुस्लिम। बाप रे मैं बाप। गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। जो इन लोगों ने सवाल किया है, एक्स मुस्लिम जितने भी, आप उस हिसाब से उस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते, और क्या कयामत तक बात, नहीं क्या दे बात, सकते। क्या बात। ये मेरा चैलेंज है, एक अरे मुसलमान भाई, मुसलमान को अल्लाह चैलेंज। ताला ने कुरान में ही कह दिया है। मैं साहिल भाई को बता रहा हूँ, आप थोड़ा चुप रहिए। अल्लाह ने कह दिया है कि जब अल्लाह ताला कह रहा है हमने इसे नाजिल किया है और हम ही इसका हिफाजत करेंगे, हाँ तो तो इसमें अल्लाह कोई ने शक क्या की बात नाजिल ही नहीं किया रह गई। है? क्या नाजिल किया अरे है? भाई, आप अल्लाह ने बीच में क्या मत नाजिल बोलो किया है? यार, आप बीच में कूद क्यों रहे हो जबरदस्ती? ये क्या असबियत है? आप चुप उबैद रहिए। भाई, और दूसरी बात, आप अल्लाह ने हमसे क्या तो कहा है? हाँ, ये उबैद भाई सवाल अल्लाह सुनो ने मेरी कहा बात। हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसका हिफाजत करेंगे, ठीक है? हाँ, तो उबैद हम इसके भाई ऊपर मेरी ईमान बात लेके सुनो। आगे क्या? ईमान लेके आओ। दूसरी बात अगर कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ के बारे में भी कहा है कि अगर इसमें इख्तिलाफ होता तो बकसरत अगर इसके अंदर कोई रैब होता, ये कुछ ये होता, अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं होता, नाजिल होता, तो इसमें बकसरत इख्तिलाफ होता। तो हम भी इख्तिलाफ भाई नहीं तो क्या कुरान है? पढ़ते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से फिर मुत्तफिक क्यों नहीं है? बात कर रहे हो यार, मेंबर अरे पर चढ़कर कुरान का हर हफ्ता मैं इख्तिलाफ है, ये खुतबा सुनता मुसलमान हूँ। का मुसलमान। बेवकूफ इंसान। अरे भाई तू क्यों भाई चुप चुप रहे, बीच में क्यों कूद पड़ रहा है? हर बात तो कोई सुन ले। कुरान को मानता है, फिर इख्तिलाफ क्यों फिर है? बकवास कर रहा है, अभी बोलता है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, बोलता है कि कुरान में इख्तिलाफ है, अभी बोलता है कुरान में यार इख्तिलाफ बकवास नहीं। मैं तुम यही तो कर रहे साबित हो। कर रहा हूँ ना, कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। अब तुम्हारा इख्तिलाफ को कुरान के इख्तिलाफ के साथ प्रैक्टिकल क्यों बता रहा है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल देखो ना अरे यार, मैं तेरे दुनिया से में बात करके प्रैक्टिकल क्यों देखो। मेरा भेजा लो डाउन कर रहा है यार? भेजे पे लॉकडाउन हो जाएगा भाई, 4 महीने, साहिल भाई 2 साल तक। हर मुझे हर हर हफ्ते मुझे मैं कहीं तो यही जाना है। सुनता रहा हूँ। समझदारी वाली बात करो भाई। एक बस्ती कुरान में का सुनो ना, इख्तिलाफ नहीं है, ये एक मुसलमान बात में में और ठीक आम लोगों में, तमाम लोगों में इख्तिलाफ है। कुरान में भाई, इख्तिलाफ नहीं है, समझे? एक बात साहिल भाई मेरी आवाज सुनो। आ रहा है? एक ही मदरसे हाँ से अफगानी भाई रुक जाओ, रुक जाओ, इनकी चार बात मुल्ला कंप्लीट होने दो निकलते हैं अफगानी पढ़ यार के। भाई। मदरसे से साहिल भाई, यार मैं मैं निकल जाऊंगा। कहीं कोशिश जाने करके वाला हूँ बॉडी तो बना लेने से सब काम नहीं होता है, समझे ना?
देखो होता क्या है, एक मदरसे से 4-5 मुल्ला निकलते हैं, उनको हाँ बात जो मुत्तफिक नहीं होता, जबकि एक ही कुरान पढ़ के निकलता है। अब बताओ, इख्तिलाफ नहीं है तो फिर अलग अलग कैसे हो गए? अरे कुरान में सब लेके तो यार अलग तुम कहाँ तो, निकला यार, तू क्यों बहस अरे करने को एक बैठा है? मिनट जरा सब्र तो करो बात यार, भाई माफ कर दे। साहिल भाई नमस्ते, ऐसे आदाब। लग गया। नमस्ते नमस्ते अफगानी भाई, क्या हालचाल? ठीक है सब बढ़िया, मगर आजकल जो चीजें मैं सुन रहा हूँ और थोड़ा बहुत क्योंकि ये तो चलते रहेगा, ये दोनों मियाँ आपस में लड़ाई करे, कोई बात नहीं। मगर एक सीरियस नोट है, क्योंकि अभी जो इंडिया में आजकल जो भी चीजें चल रहा है, आपको भी खबर है इन चीजों की। बहरहाल मैं बाहर हूँ, फिर भी इन चीजों की खबर रखता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा अप टू डेट हो। मगर आजकल ओके। जो चीजें मैंने एक बार आदम जी को भी कहा था कि अगर बात हो जाए तो, क्योंकि कई बार मैंने कमेंट भी करा तो आदम जी कोई शायद बुरा लगा कोई टॉपिक को लेकर। मैं इनसे एक पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने तो इस कल्ट को छोड़ा है, हमको पता है इसके इर्द गिर्द जो भी चल रहा है। मगर आदम जी से यही पूछना चाहूंगा कि एक कल्ट से जंप मार के दूसरे कल्ट में हम जाएंगे या प्रमोट करेंगे इनडायरेक्टली, क्या ये सही है? ओके अफगानी बाबा, आप एक काम करना, कल एडम की स्ट्रीम रहेगी इंडिया टाइम 9 जी बजे, आप उसमें जी, ज्वाइन करके एडम से ये सवाल कर लेना आप। जरूर जरूर, ठीक है? क्योंकि हाँ जी, मैं अच्छा साहिल यही भाई, नहीं, ये कोई कोई खास बात नहीं है, मगर क्योंकि वो भाई अभी है नहीं तो उसके बारे में उतना बात नहीं करेंगे। आपका बात सही है, बस हाँ, इतना कल ही आप एक ज्वाइन कर लीजिए। ख्याल है। जरूर जरूर ठीक है। जरूर। साहिल अफगानी भाई, अपना ख्याल रखिएगा। जरा हम जरूर। डिस्कशन जो है वो हमारे मोमिन भाइयों के बीच में कंप्लीट करवा देते हैं। निश मोंडी साहब कह रहे हैं हयात भाई का हर बार न्यू आयत, वाह वाह मजा आ गया। और पीयूष कह रहे हैं क्या इस्लाम में भांग, चरस, गा, गांजा पीना हराम है? यार इस्लाम के हिसाब से जो भी नशावर चीज है वो हराम है। तो ये चरस चरस गांजा ये सब चीजें जो है वो इसी में आती है। ओके। तो हेलो। उबैदुर भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हाँ हूं कि आप हमसे तो जीत सकते हैं, लेकिन अपने भाई एमडी जी हयात भारतीय मुस्लिम साहब से हाँ। आप कभी नहीं जीत सकते। एमडी हयात भाई का अरे जवाब भाई आपने मैं नहीं दिया। उनसे मुकाबला ही क्यों करूं भाई, वो तो सीधा कुरान के इसके लिए उतरे, अब कुरान पे इख्तिलाफ पे बात करने लगे। असल में वो मुसलमानों का और तमाम लोगों का इख्तिलाफ है जो कुरान को नहीं पढ़ते हैं। जो कुरान को पढ़ते हैं उनके लिए कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है अगर इसमें इख्तिलाफ हो, अगर अगर इस ये अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो तुम इसमें बकसरत इख्तिलाफ पाते। मेरा चार्जिंग उतर गया, लगता है बंद हो जाएगा, और वो चढ़ भी नहीं रहा है चार्जिंग, पता नहीं क्या हो गया है। भाग जाओ, बहुत हाँ, सारे और सवाल अल्लाह फिर ताला ने इकट्ठे कर रहे कहा हो तुम लोग, है तो भाग जाओ, बातिल चार्जर इसके खत्म ना हो जाएगी। आगे से आ सकता है और ना इसके पीछे से आ सकता है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा है बातिल ना इसके आगे से आ सकता है ना पीछे से आ सकता है। सूरह साफात में है, एमडी कौन सा हयात भाई, आयत है? क्या कहना है आपको उबैदुर भाई के बातों पे? हाँ, तो इसके अंदर इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है। ना ये सूरह साफात की आयत देखो, मैं बताता हूँ। हाँ, थोड़ा सूरह रुको साफ यार, अपना पॉइंट रखा ना आयत, आपने। हाँ, आयत एमडी हयात 42। भाई, जी एमडी हयात भाई, क्या कहना जी। है? हमारे उबैदुर भाई तो आपकी बातों को गलत सूरह साबित कर साफात दिए। का आयत 42 निकालो। मैं 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 उसको उसको समझा रहा हूँ। आप जरा मेरा हेल्प कर दीजिए। आप किसी भी हाँ अरे आखिर बेटा, तरीके एक बात बता, कुरान में इख्तिलाफ कैसे तुम लोग में इख्तिलाफ होगा, तो तुम्हें मैं हम लोगों में इख्तिलाफ होगा, कुरान में इख्तिलाफ कहाँ है? कुरान तो इख्तिलाफ से इनकार कर, अगर कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो इसमें बकसरत इख्तिलाफ होता। तो कुछ इख्तिलाफ बताना इसमें, कोई यार प्रैक्टिकल है जो है उसको इख्तिलाफ माना लाके जाएगा, तेरे बता बोलने से पाएगा? नहीं माना जाएगा। तेरी बात खत्म हो जाती, तो बहस करने के लिए खड़ा ही होना तेरा बेकार है। यहाँ पे खड़ा होना ही है कि यार जो प्रैक्टिस हो रहा है उसको माना जाएगा, जो नहीं हो, जो बोलने से नहीं माना जाएगा। जो प्रैक्टिस हो रहा है वो माना जाएगा, क्योंकि अरबी जबान प्रैक्टिकल जबान है। प्रैक्टिस हो रहा है वो माना जाएगा, प्रैक्टिकल जबान माना जाएगा। यहाँ हाँ, इख्तिलाफ जो की बात दिखता है हो रही वही है। बिकता है। जो दिखता है वही हाँ, बिकता है भाई। तुम इख्तिलाफ मुसलमान सब मिल के
बता दो कि हाँ ये है, यानी कि इख्तिलाफ मत करो, फिर माना जाएगा कि कुरान एक ही है, सब मुसलमान एक जैसा है। अगर इख्तिलाफ है तो कुरान पर ही सवाल उठेगा, क्योंकि तुम लोग मानते हो ना कुरान को, मैं भी मानता हूँ। देखो तुम्हारी अरे बात और मेरी बात मैच नहीं कर रही है। इख्तिलाफ इख्तिलाफ मुसलमानों में नहीं है, काफिरों में है, जो और मुर्तदों में है। इख्तिलाफ मुसलमानों यार में नहीं जिसको है, यहाँ तो मुसलमानों में नहीं मुर्तद हो गए इख्तिलाफ है। ना, कुरान में, कुरान में आज जब तुम तक भी इख्तिलाफ किसी मुसलमान में नहीं है, मुसलमान में नहीं है। तुम नए मुसलमान आए हो जो ये दुनिया का भेजा बना डाल रहे हो, भेजे में इख्तिलाफ। कुरान इख्तिलाफ से मना कर रहा है। कुरान कह रहा है ना उसके बातिल उसके आगे से आ सकते हैं, ना उसके हाथ के सामने से आ सकता है, ना उसके खल्फ से आ सकता है। कुरान कहता है व इन्ना लहु लहाफिजून, हम ही इसको मतलब ऐसी कुछ आयत है, हमने इसको नाजिल किया और हम ही इसको इसका हिफाजत करेंगे। तो बस बात खत्म हो जाती। तुम इसमें इख्तिलाफ पैदा करके बताओ, बस ये कोई फायदा इख्तिलाफ नहीं डाल सकते ना कुरान के अंदर। तो कुरान बेहतरीन बेहतरीन किस्सा बयान करता है, बेहतरीन किस्सा बयान करता है लोगों का जिन्होंने जिन्होंने नबियों का, अंबियाओं का और ऐसे लोगों का अरे जो जैसे उबैद भाई तकरीर मत दो, सामने वाले की का बात भी सुनो, सब तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे उनको क्या कहना है भाई ना सुनो, से रुको बात थोड़ा। क्यों करूं यार, वो तो उनका बात की, उनका आर्ग्यूमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे को। जब ये कुरान में इख्तिलाफ डालने लगते तो अगर कोई बात ऐसी होती जो मेरे मेरे काबिल होती थी मैं कबूल करता, मगर वो कबूल करने वाली बात ही नहीं बोल रहे ना भाई। कबूल करना चाहिए हाँ कुछ एमडी ऐसी हयात बात हो भाई। जिसमें कुछ हो तो समझ में ना। वो बोलते हैं मैं चले पढ़ मैं रहा हूँ, भाई तुम पढ़ सुनिए रहे हो तो ना इख्तिलाफ मत डालो ना साहिल भाई। भाई, मैं इन बोलो लोगों से नहीं लोगों में बात करना इख्तिलाफ चाहता है, हूँ, आम मैं लोगों आपसे में, थोड़ा सा बात मुसलमान में करना नहीं चाहता इख्तिलाफ हूँ। है ना। जो मुर्तद है, तो हाँ, हेलो या हेलो जिनका जहन साहिल ओके साहब, कुफ्र की तरफ है वो लोग इसको इख्तिलाफ थोड़ा करेंगे। म्यूट अच्छा करें, ठीक है। आप थोड़ा और मेरा मैं हेल्प आप करें। ये भी बता देता हूँ, मैं ये भी हयात बता भाई देता एक हूँ, मिनट उबैद भाई, कुरान उबैद भाई में, एक मिनट, हाँ उबैद भाई एक मिनट, हम हाँ आपसे डिस्कशन करेंगे, 2 मिनट हाँ को। जी, एमडी सही है, हयात हाँ भाई जी। आप आए, आपने अपनी बात रखी, एक नया इस्लाम प्रेजेंट किया, हमें उस इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बातों से, आप इसी तरीके से रहिए, और कभी दूसरे बार भी आना, हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनिए मोमिनों ना भाई साहब, मोमिन भाइयों को अपने जैसा सुनिए ना बनाए। बस बहुत शुक्रिया। 1 मिनट मुझे समय दीजिए, सुनिए ना। हाँ 1 मिनट पूरा देता हूँ बोल के, फिर हम आप फिर अलविदा लेना, बोलिए। देखिए अभी जो मोबाइल में अगर कुरान के लिए कोई भी चीज़ खोलते हैं तो आप लोग तो कुरान नहीं खोलते हैं, सॉफ्टवेयर खोलते हैं, हम्म। है कि नहीं? तो उसको क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर खोलना कहा जाएगा या किताब खोलना कहा जाएगा? हाँ सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर बोलेंगे ना, जमाने के हिसाब से अब बदल गया ना। हम्म। हाँ तो क्यों कुतब के सब फिर मानी होता बोलेंगे? है कि, अरे रुक जा भाई, 1 मिनट बात करने दे, फिर मैं खुद निकल जाऊंगा। तो जमाने के हिसाब से यार बदल जाता है। तो किताब के मानी कभी ये नहीं होता है कि वो जो औरक में लिखा हुआ रहता है उसी को किताब कहा जाता है। जमाने के हिसाब से अब आ गया, जो सॉफ्टवेयर खुलता है तो आदमी बोलता है किताब खोलो, यानी कि मोबाइल में अगर वो खोल रहा है तो सॉफ्टवेयर ही खोलेगा, वो नहीं लाएगा कि वो अच्छा एक अलमारी बात से मैं बोलूं, निकाल के किताब। एक बात बोलता हूँ। रुक जा अभी भाई। तो कुरान वो खोलता क्यों है, बीच में बोलते हो? सुनना भाई बीच में क्यों बोलते हो? अरे उसकी बात में बता रहा हूँ ना, वो जो बोल रहा सॉफ्टवेयर खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ किताब खोला जाएगा, मैं ऐसा बोला जाएगा कि किताब खोल रहा हूँ कुरान में। मैं सॉफ्टवेयर में किताब खोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर खोलना कौन सी बात हो गई? अब मैं एक कागज के कुरान पे कागज पे लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, मैं कागज को खोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैं किताब ही खोल रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में किताब खोल रहा हूँ तो मैं किताब खोलना ही बोलूंगा ना, किताब खोल रहा हूँ। तुम लोग अगर मैं मस्जिद में, बाल सुनना के भी भाई, खाल मैं निकाल निकल जाऊंगा यार, तेरे को रिक्वेस्ट है, थोड़ा चुप रहे, चुप रहो, थोड़ा चुप रहो, रिक्वेस्ट है। मैं खुद निकल यार जाऊंगा, मेरे काय पास को इतना बदतमीज टाइम कर नहीं है रहे हैं। यार, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। देखो अगर मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, किसी बूढ़े आदमी को कहूंगा कि कुरान खोलो या किताब खोलो, वो क्या लाएगा? वो जो अलमारी में रखा हुआ है उसको लाएगा उठा के। अगर मैं कहीं गली में, सड़क में, कहीं भी बैठा हुआ हूँ लड़के के साथ, उसको कहूंगा ए भाई कुरान निकाल दो, वो मोबाइल खोलेगा, सॉफ्टवेयर खोलेगा। यानी कि किताब उसको अरबी में कहा जाता है जहाँ जानकारी मौजूद है और वहाँ से आदमी हासिल कर सकता है, उसको किताब कहा जाता है। और अगर किसी चीज़ को मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, हिंदी में बोल, किसी को कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझ ले, यानी कि पढ़ ले हिंदी में, उसको अरबी में कहा जाएगा करा कर ले, ये कहा जाएगा। ओके हो गई आपकी बात।
आपकी बात हो गई ना एमडी हयात भाई, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, मैं जो तुम्हारे जो आज का टॉपिक है उस पे जो आर्गुमेंट रखने वाला था वो ये था कि कुरान जो है ना जमा की गई है, ना कि अल्लाह ताला ने इसको अल्लाह ताला ने उसको किताब की शक्ल में उतारा। इसी तरह से कुरान को लोगों में अल्लाह ने जमा किया उसके बाद कुरान की शक्ल में उसको जमा किया, जैसे हदीसों को जमा किया। पहले अलग अलग थी, फिर उसको 300 साल के बाद में जमा किए गए, जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं था। हदीस भी बताती है कि 3 सदियों तक कोई इख्तलाफ नहीं होगा। तो इसी तरह से कुरान और हदीस को जमा किया गया, उसको कोई किताबी शक्ल में जमा करके उसको मौजूद नहीं, क्योंकि उस वक्त तक कोई वो मौजूद रखना कोई वो नहीं था कि मौजूद रख पाए किसी भी किताब को। इतनी 1400 साल पुरानी किताब को मौजूद 1000 साल पुरानी किताब को जमा करना कोई वो नहीं था कि अच्छा रख पाए, उबैद भाई, समझे? चलिए आप तो डिस्कशन उसको करते हैं। बाद में जमा किया गया हाँ हाँ उबैद भाई, किताब की शक्ल में। डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सवाल, लास्ट वीक में आप आए नहीं थे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो आज का जो चैलेंज है, क्या वो चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान जो है, जो नुस्खा है, मैं वो इस आप चैलेंज को मौजूद है कि नहीं है? मैं इस चैलेंज को यही बताऊंगा कि किताब की शक्ल में नहीं है। किताब की शक्ल में मौजूद होना ही उसकी सच्चाई की दलील नहीं है। उसकी सच्चाई की दलील अच्छा, मतलब मौजूद नहीं उसका है। उसकी सच्चाई की दलील यह है कि इस किताब में इख्तिलाफ नहीं है। इसकी नहीं, सच्चाई की मैं क्या दलील पूछ रहा यह हूँ, मौजूद नहीं है। नहीं, किताब की शक्ल में बाद में की गई। रसूलुल्लाह के दौर की किताब है। रसूलुल्लाह के 300 साल बाद हदीस भी मौजूद नहीं थी। हदीस भी 300 साल ओके, बाद लोगों मतलब से जमा की गई है। उसके उसके मतलब उसके आप इस चीज को उसके मानते उसके हैं, ऑथेंटिक आप इस पे चीज को मानते हैं। सुनो मेरी ऑथेंटिटी बात, पे आप इस ही अरे रुकते क्यों नहीं यार? आप इस रुक चीज गया को ना, मैं पूरा मानते बात हैं कर। कि रसूलुल्लाह के जमाने का कोई मुकम्मल नुस्खा जो है वो मौजूद नहीं है? मौजूद है भी तो उस्मानिया कुरान अगर कहा जाता है कि वो मौजूद है तो वो नुस्खा कुछ मौजूद है होगा। उसके बारे में मुझे खास अच्छा, नहीं एक इल्म है, मैं क्यों गाइस बोलूं। गाइस एक मिनट, उबैदुल भाई, एक नया कुछ फीचर है यूट्यूब में कमर्शियल ब्रेक ऐड करने का, तो मैं वो एक बार टेस्ट कर रहा हूँ कि ऐड होता है नहीं होता है। तो देखते हैं कमर्शियल ब्रेक इसमें आता है नहीं आता है। 1 मिनट दीजिएगा। यार आया क्या ऐड? नहीं 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 आया। नहीं, स्ट्रीम यार्ड वालों को नहीं दिखेगा, यूट्यूब वालों को पता चलेगा। नहीं नहीं, इस पे नहीं आता है। इस पे आ ही आ नहीं रहा गई ना, जब, आ इसमें। ही गई। कुछ लोगों को आया है, कुछ लोगों को नहीं आया है। हम्म, ओके, अच्छा गाइस, ऐड खत्म हो गया? नो ऐड, ठीक है। हमारी आवाज आ रही है गाइस? एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है गाइस? जी साहिल भाई, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, स्ट्रीम यार्ड वालों को नहीं, अपने जो यूट्यूब पे है उनको। ओके, अच्छा भाई, टारगेट ऑडियंस को आता है, ठीक है, चलो। ओके, तो उबैद भाई, ये तो कंफर्म हो गया कि रसूलुल्लाह के जमाने का मुकम्मल कुरान जो है वो मौजूद नहीं है। तो मेरे 2 लाख रुपए तो बच गए, वरना मुझे आपको देना पड़ता। अब ये बताइए आपके दो कि लाख रुपया पहली बात ये तो आपका फ्रॉड है। आपने जो स्ट्रीम रखा है कि उस वक्त का किताब लाओगे तो ला कर दिखाओ तो 2 लाख पाओ, ये फ्रॉड है। क्यों मालूम है? क्योंकि हाँ, आपको आपको दिखाना था, इसको सच साबित करके बताओ। तो इसको नहीं सच साबित करके बताओ, नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं, फ्रॉड, इसमें फ्रॉड, इख्तिलाफ सुनो, बताओ तो ये सही साबित होता है।
मैं इख्तिलाफ बताऊंगा यार, आप वो टेंशन ना लो, अभी पूरी स्ट्रीम में हमने इख्तिलाफ ही बताया है। आप ये बताओ कि वो तो नहीं है, मुझे ये बताओ कि रसूलुल्लाह के ये जो कुरान है इसको जमा करना ये जरूरी था या नहीं था? हाँ जरूरी था ना। जरूरी था। अरे भाई तो अगर ये जरूरी जरूरी था काम उन्होंने जमा किया था, सुनो ना, हजरत उमर ने जमा भी रसूलुल्लाह ने किया ये था। जरूरी काम क्यों नहीं किया? हाँ हाँ जमा किया था, मगर वो आज तक मौजूद नहीं रहा ना, मौजूद नहीं जमा रहा। किया था असल में वो रसूलुल्लाह ने? अल्लाह ने इख्तिलाफ उसमें नहीं डाला ना। लोगों एक मिनट ने एक मिनट एक मिनट एक मिनट लोगों एक का मिनट इसमें किसी के अंदर इख्तिलाफ उबैद नहीं। भाई, उबैद भाई रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। आपने ये हम्म, कहा कि रसूलुल्लाह ने कुरान को जमा करवाया था। नहीं नहीं नहीं, हजरत उमर के दौर में कुरान अरे के रसूलुल्लाह ने बाद करवाया का था या ये नहीं हुआ करवाया था। था, वो पूछ रहा हूँ। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह ने तो लिखवाया था ना, सब अलग अलग सहाबा किराम से जमा करवाया लिखवाया था। था, एक साहब जमा करवाया कहा था। कहा था जमा करने के लिए, कहा था कि इसे जमा कर लिया करो कुरान को। तो रसूलुल्लाह के जमाने में जमा हुआ था वो, रसूलुल्लाह के दौर में? हाँ हाँ जमा हुआ था, हुआ होगा। कहाँ है वो हाँ फिर? वो कहाँ है? हुआ था जमा, मगर उस वक्त का और अगर कुरान रसूलुल्लाह के जमाने में वो महफूज जमा रह हुआ सकता था, है। सुनो मेरी बात सुनो, कुरान अगर का रसूल नुस्खा महसूस नुस्खा नहीं रह सकता है। अब उसको ओ मेरे भाई, अल्लाह की किताब से ही लिया जा सकता है ना, कि अल्लाह ताला ने मेरे उसके बारे भाई में सुनो लिखा। मेरी बात, तुम्हारी बात में कितना कॉन्ट्रडिक्शन है बताता हूं मैं। आप कह रहे हो हम्म, कि रसूलुल्लाह के जमाने में ही रसूलुल्लाह ने उसको जमा करा दिया था। तो भाई जब जमा रसूलुल्लाह के जमाने में ही हो गया था तो अबू बकर और उस्मान को ये फिर से रिवर्क क्यों करना पड़ा? अरे वो अबू बकर और उस्मान ने ही जमा करवाया था रसूलुल्लाह के दौर में। ये ये इतना पहले वो पढ़ते थे एक एक आयत को, तो उस पर अमल करते थे, उसको सीखते थे, तो जमा तो नहीं जमा करवाया था करना। रसूल? दोनों बात हाँ मत तो बोलो, एक फिर बात पे लोगों पर कायम रहो। सुनो सुनो सुनो, फिर रसूलुल्लाह के दौर तक रसूलुल्लाह ने और भी जमा वहिया करवाया था या उतरती नहीं थी, करवाया था? हदीसें उतरती थी। सुनो 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 सुनो, और भी वहिया और हदीसें उतरती थी गई में। अरे मेरे भाई, रसूलुल्लाह ने जमा करवाया था क्या नहीं करवाया था, पहले ये जवाब दो। अभी पहले बोले हाँ, अब आपने अपनी बात से पलटी मार लिया। करवाया था या नहीं करवाया था? उबैद भाई, बैटरी गई क्या?